अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं चाचा बूटा जी। चाचा जी, क्या नई ताज़ा है? उदा ही आ भाई जिवें कल सी। अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, जो ही कैमरा ऑन होता है तुम दुखी से होकर बैठ जाते हो। नहीं मैं की बातां कीतियां जी। ये जो बता रहे थे कि बड़ी बड़ी मुखबरियां मेरे पास, अंदर की खबरें हैं, वो तो हैगियां ही आ भाई। ये कौन है? तुम्हारा कोई अजीज है जो तुम्हें खबरें देता है? ये मेरा बड़ा भरा वा। वड्डा? अच्छा, वो जो चंद दिन पहले आया था? ओए ओ ही मेरा चितड़ खुरक भरा। वो बेचारा ऐसा दुखी हुआ उस दिन का, आया ही नहीं फिर बाद में। ओ भाई रोज तरले करदा मैनू बुला। तो फिर बुलाओ किसी दिन उसे। ओ चल बुला लांगे, कल नू बुला लांगे ओनू। खबरें वो कैसे निकाल लेता है? ओ किसे बड़े आदमी दा खानसामा वा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। उथों ही बस खबरां सुन लैंदा वा, मैनू दस दिंदा वा। ताज़ा तरीन क्या बताया उसने? बस आ दो तीन छोटियां मोटियां खबरां वा। क्या क्या मसलन? एक तां आ वी नवाज शरीफ ने बड़ी लापा कीती आ। किदी? आ शहबाज शरीफ दी। की कहंदा की है? कहंदा भी आ ਜਿਹੜੀ मेरी बेइज्जती होई आ ਇਹ नहीं सी होनी जे तू ना हुंदा। ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਹਮੀਅਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਨਿੰਗਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਤਾਉਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਰੜ। ਆਹੋ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹਾਈਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਓਏ ਆਉਣ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਆ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਹਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਦ ਹਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਓਏ ਆ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ। ਹੋਰ ਕੌਣ? हाँ, जावेद लतीफ। वाकई वो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा लॉयलिस्ट था। ਇਹ ਕੀ ਥਾ ਜੀ? वफादार वफादार ਆ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? लॉयलिस्ट चाचा, लॉयलिस्ट क्या है? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। अच्छा चाचा को खबर दसना और की है? ਓਏ ਆ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਆ? अच्छा जी, खबरें बस यही हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। वो की? ਇਹ ਅਨਕਰੀਬ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। हाँ, एक ही? ਅਨਕਰੀਬ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਵਾਂ? नहीं मैं समझ आ गई। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਐਡੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ। ਇਹ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਜਨਾਬ, ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਨਾਕਾਮ, ਨਿਹਾਇਤ ਮਾਠਾ ਔਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਚਾਚਾ, ਸਾਰੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ
ਟਕੇ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਭਾਈ, ਆ 1.5 ਸਾਲ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਆ। ਆ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਡਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੀਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਕੌਣ? ਮਾਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਰਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ੀਦ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? KPK 'ਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਆ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ, ਫਜ਼ਲੋ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ। ਆ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਡਨ ਚੋਂ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ GDA ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਚਾਚਾ? ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਕਸਰ ਕੱਢੇਗੀ PTI। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਬਲ ਵਾ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਚਾਚਾ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਸਮਝ ਚਾਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਐਕਤੀ ਮੇਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਚਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣ, ਆਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਾਤੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ 80 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਾਨ ਨਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ 50 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਭੈਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਇਹ 1000 ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁਰ ਤੇ? ਤੇਰੀ ਫੁਰ ਤੇ ਹੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਫੁਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1000 ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਚਾਚਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹਿਯਾਤ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਯਾਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਤੇ ਰਸ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਇਹ 'ਚ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ। ਗਾਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੁਣਿਆ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲੱਤ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਪੈਣ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਲੱਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਚਾਚਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਈ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਜਾਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਚਾ? ਓਏ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਢੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆਹੋ, ਇਹ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਚਾਚਾ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਏ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 10 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ भी लाहौर तैयार बैठा हुआ है। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अली हसनैन के साथ साथ सफ़ीर सुलहरी साहब। सफ़ीर सुलहरी साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पंजाब की पॉलिटिक्स का इन जनरल एंड लाहौर की पॉलिटिक्स के साथ इन पर्टिकुलर। तो सफ़ीर साहब को आज लाइन पे लेने की वजह ये भी है, इस वक्त हम जो लाहौर की सियासत है जो उमूमी तौर पे पंजाब की सियासत कहलाती है उस बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद से ऑफ कोर्स शकील साहब हमारे साथ हैं और प्रॉबेबली ये आज इलेक्शन सेल में शकील साहब की इस्लामाबाद से आखिरी नुमाइंदगी है। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ बाਅद फौत हो जाएंगे? यार क्या करते हैं चाचा आप, अपने जैसी बातें करते हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छा। तशरीफ ला रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे शकील साहब आपके साथ। ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई ये बगलगीर होते नजर आ रहे हैं, इसको सियासत में ट्रांसलेट कीजिए जरा। ये मेरे ख्याल में जी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, इसलिए कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिक्स जो है वो ब्लड फ्यूड नहीं होती, उनके इख्तलाफात जो हैं वो इख्तलाफात ही होते हैं, वो कोई दुश्मनी नहीं होती। तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है ये। और मैं अभी देख रहा था शाहजेब के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत, उनसे बड़ा टफ क्वेश्चन उसने किया कि जी देखें खान साहब तो बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल किया करते थे मौलाना के खिलाफ, तो अब क्या हुआ है? तो उसने बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उसने कहा जी ये दोनों तरफ ही था, और हम अगर दोनों तरफ जो है अपने रवैये तब्दील कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप समझते हैं कि मौलाना की जो 4-5 सीटें हैं वो इमरान को इन द लॉन्गर रन कोई लंबा चौड़ा फायदा पहुंचा सकेंगी? वो इतना फायदा तो नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन उनके पास जो स्ट्रीट पावर है, हाँ प्रोटेस्ट, उसमें वो बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जो गुस्सा जो है पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ हो सकता है, पुलिस को या एस्टेब्लिशमेंट को, वो शायद मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नहीं होगा। तो इसलिए एक तरह से पीटीआई के वर्कर्स के लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी वो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन हो ना हो, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी अगर एजिटेशन की तरफ बात जाती है। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, क्योंकि एजिटेशन का मुतहम्मल नहीं हो सकता ये माशरा, हमारी सियासत। सफ़ीर सुलहरी साहब आपकी तरफ जाने से पहले मैं इसी बात पे अली हसनैन आपकी टेक भी लेना चाहूँगा। जी सर, मैं यही अभी शकील साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि अगर कल को ये टाइम आ गया कि इनको एहतजाज की कॉल देना पड़ी, तो जाहिर है पीटीआई ने तो पहले 2-3 दफा एहतजाज की कॉल दी, बल्कि पिछले हफ्ते ही दी, लेकिन उसमें पुलिस पहुंच गई, वही गिरफ्तारियां हमें देखने को मिली। तो मौलाना के साथ मिलने से आपको याद होगा 2014 में जब खान साहब ने धरना दिया तो उनके साथ एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ थी कादरी साहब के जो लोग थे, वर्कर्स थे, फॉलोअर्स उनकी। तो हो सकता है कि खान साहब के ज़हन में एक दफा फिर यही बात हो कि यार मुझे साथ किसी और को भी मिलाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट पावर की भी बात हो रही है। मौलाना साहब से तगड़ी स्ट्रीट पावर ना किसी के पास है। मैं समझता हूँ
और जो आगे से जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पावर शो करनी है, पुलिस या इदारों ने, वो भी थोड़ा सा झिझकेंगे इस मामले को कि यार थोड़ा सा हमें हाथ होला ही रखना चाहिए। पीटीए वालों को तो मशहूर है ना बर्गर बच्चे, लेकिन वो थोड़ा सा सोचेंगे जरूर कि मौलाना साहब साथ है, जरा हाथ हमें होला रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने बहुत बरवक्त बड़ा मुनासिब फैसला किया है, क्योंकि पेशरफ्त हुई थी मौलाना की तरफ से। मौलाना ने जी। जिस झिल्लाहट का इजहार किया, जिस खफगी और नाराज़ी का इजहार किया रिजल्ट्स के ऊपर, क्या कुछ करता चला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन को किस तरह मोल्ड किया गया, मनूवर किया गया, इस पर मौलाना के रिएक्शन को इमरान ने बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ भांप लिया था बल्कि अपने हक में इस्तेमाल किया। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बर्फ़ पिघलती महसूस हो रही है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं। ये तो खैर महज एक इत्तफाक है ना, ये जो मौलाना वाला, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये विंडफॉल है कि मौलाना का सपोर्ट करना इमरान को, पीटीआई को, वो एक और बात है। वो इस हिसाब से तो जमात इस्लामी ने भी कर लिया है, जीडीए ने भी कहा है, और भी बहुत सो ने, और इसका आगाज़ किया था अख्तर मैंगल ने सबसे पहले इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन से पहले ही उसने कहना शुरू कर दिया था। अब आइए छोटी छोटी डेवलपमेंट्स, जैसे नवाज शरीफ की फतह है मानसहरा में, उसके बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन आ गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पेज के ऊपर। फिर इसी तरह ऑन चौधरी का फैसला, वो भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। 2-3 और फैसले हैं जो पाइपलाइन में हैं। फिर एक अजीबो गरीब हैरत अंगेज डेवलपमेंट हुई है, परवेज इलाही के साथ मुलाकात करने पहुंच गए हैं चौधरी शुजात और उनका लाओ लश्कर। इस हवाले से मैं सफ़ीर सुलहरी साहब से पूछना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे? सर, मैं जो चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात है उसको आज सबसे बड़ी हेडलाइन समझता हूँ, ठीक। क्योंकि आप देखें कि जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे पीटीआई पर और चौधरी परवेज इलाही की फैमिली पर, तो तब शुजात साहब जो है ना बिल्कुल खड़े थे अपनी दोस्तों के साथ, जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन आज उनका अचानक परवेज इलाही के लिए मोहब्बत ऐसे नहीं जागी, ये बर्फ पिघली है, और ये कहाँ से उनको भेजा गया है, किस लिए भेजा गया है, ये कल तक इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाए। वैसे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो मामला, लेकिन मुझे डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पता चला है कि चौधरी शुजात ख़ास तौर पर माफ़ी मांगने आए थे कि सियासत में जो कुछ होता है बाज़ औक़ात बंदा तजावुज़ कर जाता है लिमिट से, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था हमारे ख़ानदान में। तो बदकिस्मती से ये पै दर पै गुज़श्ता 1.5 साल में ये सारा सिलसिला होता चला गया। तो एक तो मैं इस पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरी ज़िंदगी में बच्चों की सुलह करवा दी जाए। ये एक दरख्वास्त लेकर चौधरी शुजात तशरीफ़ लाए थे, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं अपनी अहलिया से मशवरा करूँगा, अपने ख़ानदान से मशवरा करूँगा और फिर आपसे गुफ्तगू करूँगा। ताहम उन्होंने शाफ़े के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और ये कोई अचानक अपनी फैमिली का ख्याल नहीं इनको आया। बेसिकली हमारी सियासत जो है इस वक्त हर रोज अपना रंग बदल रही है, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। कल आपने देखा फजल रहमान की, और आज ये डेवलपमेंट है परवेज इलाही वाली और चौधरी शुजात वाली का। आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शन रिजल्ट्स ये ना होते तो चौधरी शुजात भी ना उधर जाते, मौलाना फजल रहमान भी इधर ना आते, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर उसमें बड़ा अहम रोल मियां नवाज शरीफ की नेगेटिविटी का भी है। वो सुना खुद भी डिप्रेशन में है, नसीब दुश्मना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ कि वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि ये उम्र डिप्रेशन में जाने की होती नहीं है। और बाज़ एतराफ़ से कुछ इशारे भी ऐसे आए हैं, कुछ इंडिकेशंस भी ऐसी आई हैं कि मियाँ साहब ये इख्तियार आपको किसने दिया था कि आप दस्तबरदार होते फिरें? जब सारा स्टेज आपके लिए सेट किया जा रहा था तो फिर आप कहते तो सही कि जी मैं तैयार हूं, लेकिन बेहतर है कि आप शहबाज शरीफ को बना दें। आपने आउटराइटली रिजेक्ट ही कर दिया ख्याल के नहीं जनाब, सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैं तो इस तरह की लंगड़ी लूली वजारत उज़्मा कबूल ही नहीं करूँगा। यानी इसमें भी एक तकब्बुर है कि मैं मिन्नतें तरले करता फिरूं दूसरों की। तो इस बात ने भी एक बैड मैसेज भेजा है किसी तरफ, और जिसके बाद छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं। मसलन ये जो उनकी मानसरा वाली सीट है, मसलन 5-7 दीगर, मेरी इत्तला ये है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ 5-7 सीटें हैं, 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जिनको कल या परसों आप देखेंगे कि एक तरह से क्लियर कर दिया जाएगा कि वो पीटीआई हैं। और आप अभी बता रहे थे कि इस तरह की 30-35 सीटें हैं। फिर एक और दिलचस्प बात की तरफ आपने इशारा किया था सफ़ीर सुलहरी साहब, हम जब गुफ्तगू कर रहे थे अभी, जब ये कनेक्शन वगैरह जुड़ रहे थे, कि मरियम नवाज़ को क्या मुस्लिम लीग की पंजाब क़यादत ने एक्सेप्ट कर लिया है बिला चूनो चरा? आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जो आपने पहले बात की है कि नवाज शरीफ की दस्तबरदारी की वजह से तो ऊपर वाले हलकों ने ये भी बुरा मनाया है कि एक तो खुद दस्तबरदार हुए हैं और दूसरा ना तजर्बाकार अपनी बेटी को जो है नामजद कर दिया खुद साख्ता वजीर आला के लिए। यानी ना कोई इसमें मशवरा लिया गया पार्टी से, ना ऊपर किसी से मशवरा किया गया, अचानक अपना फैसला सादर कर दिया गया कि मरियम नवाज जो है वो पंजाब की क़यादत करेंगी। और आज की ये भी एक बड़ी तब्दीली है हमारी सियासत में पंजाब में कि नून लीग के अंदर से सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि जब तजर्बाकार और अच्छे लोग मौजूद थे तो एक ना तजर्बाकार को क्यों ऐसे हालात में पंजाब की क़यादत सौंपी गई। यानी डायनेस्टी की सियासत पर मोहर सब्त कर दी। बिल्कुल सर। और हमारे आला हलकों ने भी इस बात को बड़ा बुरा फील किया और ये इसलिए सारी चेंजिंग जो है जो हो रही हैं, तो आज के दिन की जो डेवलपमेंट है इसी का पेश करना चाहिए। जी शकील साहब। जो बात चल रही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से जो पार्डन की ऑफर की गई थी इमरान खान को, सर वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। हाँ, हाँ इमरान जी, खान साहब ने कह दिया कि मैं ऐसी कोई इस तरह माफी नहीं चाहता। मैं जो है ट्रायल के जरिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। अच्छा सफ़ीर सुलैमान साहब, हुमायूं अख्तर के बारे में बताइए कि फाइनल काउंट क्या हुई, क्या मामला हुआ उसका? असल में ताकतवर हलकों ने उनको बड़ा फोर्स किया और उनकी फैमिली को बड़ा प्रेशराइज करके तो उनको ले गए उस तरफ। तो वो उनको भी यही ख्वाब और उम्मीदें दिलाई गई थी कि आपको जितवा देंगे, लेकिन बेवफाई कर गए नहीं, बेवफाई कौन कर गया? ताकतवर हल्के जो लेके गए। नहीं, मेरा ख्याल है उनका ध्यान नहीं पड़ा है इनके ऊपर। इन्हें कहना चाहिए था यार हम भी तो पड़े हैं राहों में, हमारा भी कोई मामला करो। ये कितने वोटों से हारे हैं? ये सर बड़ी लंबी लीड से आ रहे हैं। जो सादुल्ला पीटीआई का है उसके कोई 1,20,000 वोट है, नून लीग के वहां को 80,000 है, हुमायूं साहब के 30,000 वोट है। ओ, तो ये नून लीग की ब्लेसिंग्स के बगैर खड़े हो गए थे? नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था फरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर खान के सामने, मैंने अपना बंदा विड्रॉ नहीं करना। ओहो, फिरदौस आशिक अवान ने तो अपना गुस्सा एएसआई पे निकाल दिया ना, इन्होंने क्या किया? बस वो खामोश होकर घर बैठ गए। ये शरीफ आदमी है शायद, इसलिए इसने कुछ नहीं किया। नो डाउट सर, नो डाउट, बहुत शरीफ मुझे बहुत अफसोस होता है हुमायूं अख्तर की ये जो इनिंग्स है ना, ये बड़ा फुल ऑफ विसिसिट्यूड्स है। ये इसका ग्राफ जो है ना वो अजीबो गरीब बनता है जी। अगर इस दफा अगर हुमायूं साहब स्टैंड लिए रखते और ताकतवर हल्कों की बात ना मानते तो खोसा की जगह हुमायूं अख्तर खान होते तो 1.5 लाख वोट पड़ता। जी डेफिनेटली डेफिनेटली हुमायूं अख्तर नई तारीख रकम कर देता। हो ही ना, इस दफा चूंकि जिस तरह उन्होंने हल्के को ब्लॉक वोट तक वर्क किया हुआ था और उस बड़ी एक अपनी उनकी दोस्ताना माहौल में तादाद थी उनके साथ, और वो पीटीआई का वोट भी साथ पड़ता तो बहुत आगे जाते। अच्छा इसको कह लें कि बदकिस्मती कह लें सर, जी, इसको बदकिस्मती कह लें सर उनकी। बिल्कुल बदकिस्मती थी, बदकिस्मती नहीं तो और क्या था। 13 के इलेक्शन पे मेरी नवाज शरीफ साहब से बात हुई तो कहने लगे कि मैं जान के टिकट नहीं दिता सी हुमायूं अख्तर नूं। मैं कहा जी क्यों? नवाज शरीफ साहब कहने लगे कि इन्हें जित जाना सी साढ़े जोर ते डंड अपने दिखाने सन के जनाब मैं अपनी स्ट्रेंथ नाल जितया। सर वो नहीं, ये बात नहीं, ये मियां साहब ने आपके साथ गलत बयानी की है। असल वजह जो अनाज वो ये है कि 2004 में हुमायूं अख्तर खान प्राइम मिनिस्टर के लिए फाइनल हो गया था जब चौधरी शुजात ने इनको नहीं बनने दिया।
मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो अपनी पार्टी में किसी ऐसे बंदे को भी ताकतवर नहीं देखना चाहते जो वजीर आजम का उम्मीदवार हो, जैसे अभी आपने देखा शाहद खान अब्बासी के साथ जो किया उन्होंने। ये वैसे बड़ी बदनसीबी है, बड़ी बदनसीबी है। इस तरह तो मुगल भी नहीं किया करते थे उस दौर में, ऐसे ही सर। कि आप हर एक को शक की नजर से देखना शुरू कर दें कि भाई आपको इससे अबब होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आप नहीं हुए। जी सर, नवाज शरीफ मेच्योर हो ही नहीं सकता टिल डेथ। अभी ख्वाजा साद रफीक को हरवाने में भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अब उनके बराबर बैठ रहा था, उनको अपने बराबर बैठा हुआ बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय हाय। चौधरी निसार के बारे में क्या कहेंगे? वो भी इसी वजह से साइड पे हुए। मैं एग्री करता हूँ, वो भी ऐसे ही है सर, ऐसे ही। सफीर साहब, पंजाब में आप कैसे देखते हैं चीफ मिनिस्टर का जो कंटेस्ट होगा? पंजाब में मेरा ख्याल है कि ये जो नून लीग ने की हुई है ना इस वक्त के जनाब आजाद हमारे साथ आ गए, आजाद आजाद कोई नहीं जा रहा। आज इन्होंने लाहौर में सुबह सुबह हमारा पीटीआई का एक बंदा अरेस्ट किया है, अहमद भट्टी, रायगढ़ से। रायगढ़ से, जमील असगर भट्टी का बेटा, पीपी 165 से, ठीक। सिर्फ इसलिए कि उसको तोड़ा जाए क्योंकि वो लाहौर की सदारत भी उनके पास है। तो ये नहीं कर सकेंगे पीटीआई के किसी एक बंदे को भी तोड़ सकें। ये जो वसीम कादर था ये तो पहले से ही मिला हुआ था ना, ये कोई इन्होंने कोई इलेक्शन के बाद नहीं इसको किया, ये पहले से ही तय था इनके। ये इसने वसीम कादर ने इमरान खान के पेपर जो लाहौर में हल्का 122 में इसकी वजह से जो है ना वो हुए थे रिजेक्ट। बात हो रही थी पंजाब की, सर आप पंजाब का पूछ रहे थे। पंजाब से जितने भी उम्मीदवार अभी तक मरियम नवाज के पास गए हैं या शहबाज शरीफ के पास, एक तो वो इसलिए गए हैं कि आजाद को ये होता है कि गवर्नमेंट इनकी बन रही है। इन्होंने पहले दिन ही एक शोशा छोड़ दिया था कि हमारी पंजाब में बन रही है, और वो जितने उम्मीदवार गए हैं वो वाकई आजाद नोटिफिकेशन हुए हैं, वो पीटीआई की हमायत याफ्ता नहीं। अच्छा, लेकिन नंबर गेम तो उनकी सेफ है, उन्हें को बहुत डिपेंड करने की जरूरत तो नहीं है आजाद उम्मीदवारों पे। मेरे पास एक इतला और भी है कि ये इक्तदार की जो मुंतकली है ये अगस्त में होगी। अच्छा जी, इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं, इसको टेक्निकल इसको बनाना चाह रहे हैं, और जो है अभी इक्तदार नहीं दिया जाएगा किसी को अगस्त तक। अच्छा, ये यानी कि इसकी जो क्या वजह? 29 फरवरी को इजलास होना है कौमी असम्बली का, वो आप समझते हैं कि वो फजूल इजलास होगा बगैर किसी नतीजे के, वो खत्म हो जाएगा? जो फिर जो वो इजलास नहीं होगा मेरे ना? पास इतला आई है अभी, इसको मैं सुबह कंफर्म करूंगा, लेकिन इतला आई है और बड़े अहम सोर्स से मेरे पास आई है कि अगस्त तक इसी तरह इनको चक्रों में डाला जाएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अदालतों के जरिए, और इस तरह चलता रहेगा। ये अगस्त में जाके 14 अगस्त के बाद जो है मुंतकिल इख्तियार की होगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताएं, ये आईनी और कानूनी तौर पे कैसे मुमकिन होगा? यही सवाल मैंने किया था कि ये मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आइन और कानून बनाने वाले ही इसको मौका देंगे, यानी मतलब कि कोर्ट के जरिए इसको करेंगे लेंगरान, मसाइल ऐसे बना दिए जाएंगे कि वो खुद खुद चलेगा इस तरह काम। ये अलग बात है कि हालात ऐसे हो जाएं, मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं, कोई स्ट्रीट के हालात ऐसे हो जाएं, कोई और मसाइल ऐसे हो जाएं शायद, लेकिन उस वक्त तक इसको लटकाए रखना, इसकी समझ नहीं आती। बिल्कुल, मेरे भी खदशात यही थे, मैंने यही सवाल किया था, लेकिन उनका आगे से कहना था कि पहले पाकिस्तान में कौन सा को आइन और कानून चल रहा है और ये अदालतों के जरिए ही किया जाएगा। अच्छा सफीर साहब, एक और भी मसला है कि क्या पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये किसी और पार्टी में जाएंगे ताकि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिल भी सकेंगी कि नहीं? नहीं, आज पेशरफ्त हुई है, मेरी शाम को खोसा साहब से बात हुई थी, तो वो होपफुल थे, वो कह रहे थे हो जाएगा, मिल जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कोई उम्मीद दिला दी है। बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा नाउमीदी दिलाई है उन्हें हर चीज में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से होप है कि हो जाएगा, उन्होंने कहा कि कोई रूल निकाला उन्होंने कि हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि इलेक्शन हुए 8। अली हसनैन, आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ये भी कहा था कि 72 घंटों के अंदर अंदर आजाद को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अब तो 172 घंटे तकरीबन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना पीटीआई ने कोई पार्टी ज्वाइन की है और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया या उन्होंने कोई बात की है अच्छा, दोबारा। ये सफीर सुलहरी साहब ने जो अभी एक थ्रिलर छोड़ा है, इससे तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही है उसको तकवीयत मिलती है कि सारी की सारी बसात ही लपेटी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ये सर बड़े बाखबर जराये से खबर मिली है, और अगस्त तक जो है ना इसी तरह ही इनको लेके चला जाएगा, और अगस्त के बाद देखा जाएगा कि किसको इक़्तिदार देना है। और ये इस काबिल भी हैं सारे के सारे कि नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू से मुझे चाचे बूटे की याद शिद्दत से आ रही है। वो बेचारा बैठा बैठा बुस रहा है, हम वापस जा रहे हैं उसकी तरफ। और थैंक यू वेरी मच इलेक्शन सेल जी। चाचा बूटिया, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਗੈਸ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, 2 रुपए कुछ पैसे ऊपर गया। लेकिन चाचा मैंने कई दफ़ा कहा है अपनी गुफ्तगू में अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखा करें। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰ। यानी जो मुंह में आए आप गाली दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ਓਏ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। चाचा फिर वही गल। ਇਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। चाचा ये नहीं हो सकता कि तुम उर्दू बोला करो। ਚਲੋ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਤੁਨ ਲੋ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। चाचा प्लीज। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਸਲੈਰੀ ਸੀ हाँ जी। ਇਹ ਕੋ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਵਾ। नहीं चाचा पुराना दोस्त है, DH रहंदा है ते बड़ा डिसेंट आदमी है। ਆਹੋ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चाचा बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਵਾ। चाचा मैं ये गल ही नहीं कर रहा। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹਸਰਤ ਰਹੀ ਆ, क्या ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। चाचा तुम वैसे वाकई बाय नेचर बहुत वाहियात हो। ਉਹ ਯਾਰਾ ਟੇਲਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਵਾਹ ਜਾਤੀ ਆ ਬਈ।